Hello students, in the depreciation we have seen all the theories. Now today let's start some of the depreciation. In that let's see some illustration number 1 on page number 32, that Sheila Limited has purchased a machine for 48,000 on 1/4/12. Installation expense of this machine was 2,000 and estimated life of this machine is 10 years. Scrap value of machine is expected to be 10,000. Determine annual depreciation and annual depreciation rate under straight line method of depreciation. Prepare journal entries, machine account, depreciation account for first 3 years. Disclose accounting effect in the final accounts of first year. Now this is not in our syllabus that disclose this in the final account. So we prepare only machinery account, depreciation account and journal entries, right? Now first of all, depreciation is to be calculated by two methods, that is fixed base, that is fixed installment method, and reducing balance method, that we have already seen, right? These two methods जो मैंने टिक मार्क किया है वो, right? There are 10 methods to calculate depreciation, but here in our syllabus only 2 methods are given, that is fixed installment method and reducing balance method. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मीन्स व्हाट कि एक बार हमने फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया, वी गिव इफेक्ट ऑफ द सेम अमाउंट एवरी ईयर, मीन्स हर साल हम डेप्रिसिएशन का वही अमाउंट से इफेक्ट देंगे, उसमें हम कोई चेंज करेंगे नहीं. सो दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. नाउ हियर फॉर द डेप्रिसिएशन, for the calculation of depreciation there are two formulas are there. So first formula is when scrap value and number of years are given. At that time we apply this formula. D means depreciation, D is equals to C minus S upon N. C means cost price, S means scrap value and N means number of years. And when rate of interest is given, at that time we find out depreciation is equals to C multiplied by R upon 100. C means cost price, R means rate of interest and 100. तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ इयर्स भी दिए हैं सम में, राइट? 10 years स्क्रैप वैल्यू दैट इज 10,000, 48,000 that is cost price. So first of all we find out depreciation. Depreciation is equals to C minus S upon N. So C that is now 48,000 के साथ इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 2,000 भी दिए, तो ये 2,000 का क्या करें? तो हमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हम ये वैल्यू ऑफ मशीनरी में ऐड कर देंगे. अगर आपको जर्नल याद हो, जर्नल में भी हम इसी तरह से करते थे कि जो भी एडिशनल इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, जो भी एडिशनल एक्सपेंसेस दिए होते हैं ऑन द परचेजिंग ऑफ एसेट, दैट इज ऑलवेज add into the value of asset. So same also we have to follow here. So 48,000 plus 2,000 becomes 58,000. So cost price is equals to purchase price plus installation expense. 48,000 plus 2,000 is equals to 50,000. So now we find out depreciation. Cost price 50,000, scrap value 10,000, number of years 10. So depreciation आ गया 4,000, right? नाउ सम में रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने को भी बोला है. रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हो तो हम डेप्रिसिएशन का ये फॉर्मूला यूज़ करते थे, D इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100. तो अभी हम क्या करें, D तो हमें मिल गया है, हमें R फाइंड आउट करना है, तो क्या करें? तो उसके लिए भी एक और फार्मूला सम में दी है, ये चैप्टर में दिया है. R इज इक्वल्स टू D अपॉन C मल्टीप्लाई बाय R. D मीन्स डेप्रिसिएशन, C मीन्स कॉस्ट प्राइस. ये दूसरी फार्मूला है. ये जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो, और ये जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हो तो D डेप्रिसिएशन आ गया है 4,000. सो 4,000 अपॉन 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 8% आ गया, राइट? अभी सम में ये बोला है दैट अकाउंटिंग ईयर ऑफ कंपनीज एंडिंग ऑन 31st March प्रिपेयर जर्नल एंट्री, मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड फर्स्ट 3 year. फर्स्ट 3 year मीन्स व्हाट कि ईयर स्टार्ट्स ऑन 1/4/2012. 1/4/12 पे हम मशीनरी खरीद रहे हैं, तो ये ईयर एंड होगा 31/3/13 पे, तो ये दिस इज़ अवर फर्स्ट ईयर. फिर 1/4/13 से 31/3/14, तो ये सेकंड ईयर.
1/4/14 और 31/3/15, सो दिस इज़ अवर थर्ड ईयर। तो ये 31/3/15 तक जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है। 31/3/15 तक हमें लेजर भी बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, राइट। तो पहले हम ये जर्नल एंट्री स्टार्ट करें। जर्नल एंट्री में फर्स्ट एंट्री इज़ फॉर परचेजिंग, सेकंड एंट्री इज़ फॉर द डेप्रिसिएशन, थर्ड एंट्री इज़ फॉर द ट्रांसफरिंग डेप्रिसिएशन टू P&L अकाउंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था आप जर्नल एंट्रीज लर्न कर लेना। आई होप यू हैव लर्न द जर्नल एंट्रीज। ये फर्स्ट एंट्री मशीन जब भी परचेज करें तभी ही, राइट। दूसरे ईयर में तो मशीनरी परचेज नहीं करेंगे, तो ये दोनों एंट्री ही जाएगी। So first entry 1/4/14 we are journal entry. Now you know that how to pass journal entries. We are purchasing machinery, so machinery account debit 50,000 to bank 48,000 to cash 2,000। मशीनरी के लिए स्पेसिफाई नहीं किया है, चेक दे रहा है बैंक या कैश दे रहा है, बट हियर वी एज्यूम दैट इन एवरी सम वी आर पेइंग अमाउंट ऑफ मशीनरी थ्रू चेक ओनली। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। नेक्स्ट वी ट्रांसफर डेप्रिसिएशन इनटू द मशीन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 4,000 यहाँ पे डेप्रिसिएशन की अमाउंट। थर्ड एंट्री ट्रांसफरिंग डेप्रिसिएशन टू P&L अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 4,000 राइट। आगे अनदर 2 एंट्रीज। फर्स्ट ईयर इज ओवर, सी फर्स्ट ईयर इज ओवर। नाउ सेकंड ईयर। सेकंड एंट्री में कोई भी परचेजिंग ऑफ मशीनरी नहीं है, सो सीधा डेप्रिसिएशन। तो ये सेकंड ईयर। (31/3/14) डेप्रिसिएशन की एंट्री लास्ट डे पे ही होगी। तो ये एंडिंग डेट का कौन सी है? 31/3/14। तो 31/3/14 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट 4,000। बीइंग में आप सिंपल है क्या लिखोगे? डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड 4,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। फर्स्ट एंट्री में क्या लिखेंगे? परचेजिंग ऑफ मशीनरी। अभी ये 31/3/14 वी ट्रांसफर दिस डेप्रिसिएशन टू P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 4,000। नाउ द लास्ट ईयर 31/3/15 डेप्रिसिएशन की इफेक्ट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 4,000 एंड नेक्स्ट P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 4,000 राइट। तो तीनों साल की जर्नल एंट्रीज दैट इज recorded. Now make the total of this journal entry. 3 साल की क्यों? बिकॉज इन द सम इट इज गिवन दैट प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर 3 years। तो 3 साल की बनाई है, राइट। नाउ द लेजर ऑफ शीला लिमिटेड, उसमें मशीन अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों। लेजर में जर्नल के बेस पे ही लेजर पोस्टिंग करना है, दैट्स इट। तो मशीन अकाउंट बना दिया। लेजर हम इस तरह से बनाते हैं, टी फॉर्मेटेड, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF एंड अमाउंट, राइट। तो हम पोस्टिंग चालू करें तो पहले मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड, रिवर्स नेम बैंक एंड कैश। तो देखिए ये रिवर्स नेम बैंक एंड कैश, राइट, दोनों का अमाउंट। देन नेक्स्ट डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, क्रेडिट साइड दिया है, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, ये क्रेडिट साइड, रिवर्स नेम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000, राइट। अभी देखो फर्स्ट ईयर दैट इज ओवर, फर्स्ट ईयर यहाँ पे ओवर हो गया। सो नाउ वी मेक टोटल करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस आ रहा है 46,000, वो हम नेक्स्ट ईयर कैरी डाउन करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे, राइट। कैरी डाउन ब्रॉड डाउन, नाउ ये हम ब्रॉड डाउन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ऑन बैलेंस ब्रॉड डाउन ऑलवेज फर्स्ट डे पे होगा 1/4/13। अभी यहाँ पे इफेक्ट ये अभी ये दोनों का जर्नल एंट्री का पोस्टिंग, डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट, मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड देखो, क्रेडिट साइड रिवर्स नेम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000। बस टोटल करो, बैलेंस कैरी डाउन फाइंड आउट करो, इसको यहाँ पे ले आओ, राइट। देन लास्ट 2 में है यहाँ पे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे तो मशीनरी है नहीं, सिर्फ यहाँ पे ही है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 4,000।
तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट साइड रिवर्स नेम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000, दोनों का टोटल करो, बैलेंस कैरिड डाउन फाइंड आउट करो. 3 years आर ओवर, सो नो नीड टू ब्रॉट डाउन दिस ऑन द नेक्स्ट ईयर, राइट. मशीनरी अकाउंट ओवर. अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको डायरेक्टली दिखा दो, ये भी मैं आपको डायरेक्टली नेक्स्ट सम में दिखाऊंगी दैट हाउ टू प्रिपेयर दिस मशीनरी अकाउंट विदाउट जर्नल एंट्रीज. पहले आप ये देख लीजिए. डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के डेप्रिसिएशन ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द लास्ट डे, राइट. फर्स्ट ईयर 31st 3/30. डेबिट साइड हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 4000. क्रेडिट साइड लिखेंगे लास्ट डे बाय P&L अकाउंट 4000. ये हर सम में यही फॉलो होगा, सिर्फ अमाउंट चेंज होगी. बाकी ये मशीन अकाउंट, यहाँ पे P&L अकाउंट, दैट्स इट. एंड ईयर चेंज होगा, राइट. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट हो तो ये अमाउंट फिक्स रहेगी दोनों साइड, एंड इफ रिड्यूसिंग बैलेंस हो तो यहाँ पे दो अमाउंट चेंज होगी. तो P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, डेबिट साइड मशीनरी अकाउंट 4000, दैट्स इट. देन टोटल, दोनों साइड का टोटल सेम. यहाँ पे ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन नहीं करना है. सेम. नाउ द नेक्स्ट ईयर 31st 3/14 मशीनरी अकाउंट 4000, 31st 3/14 बाय P&L अकाउंट 4000, दोनों का टोटल सेम. नाउ द नेक्स्ट ईयर 31st 3/15 टू मशीन अकाउंट बाय P&L अकाउंट 4000, दोनों का टोटल सेम आ गया. डबल लाइन कर दीजिए बस. देन होल लाइन. सो आवर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओवर. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट आप डायरेक्टली कैसे प्रिपेयर करेंगे? डेबिट साइड टू मशीनरी लिखेंगे, क्रेडिट साइड बाय P&L लिखेंगे, एंड अमाउंट आपकी जो है कैलकुलेशन में जो आएगी वही लिखेंगे आप, राइट. ओके. सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर ledger of machinery account, ledger of depreciation account, and journal entries, right. So write down this sum in your notebook. Do practice this again by yourself, right. Okay, so that's all for today.